اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فرح عدید صاحب، آپ ریسرچ فیلو بھی ہیں اور سین ڈیاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تھینک یو ویری مچ فرح صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Thank you so much for having me. تھینک یو. فرح صاحب، پاکستان کو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے ابھی کل جو ہے وہ 75 سال ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہے بلاسفیمی لاز. اور آپ نے ہی ایک آرٹیکل لکھا، ایک بلاگ لکھا، میں اسی کو پڑھ رہا تھا اور ایکٹن انسٹیٹیوٹ میں، جس میں آپ نے بہت ساری پوری ہسٹری بتائی ہوئی ہے اور ڈسکس کیا ہوا کہ پاکستان میں جو بلیسفیمی لاز ہیں ان کو کیا چیلنجز ہیں، وہ کیوں نہیں ختم ہو پا رہے، کیا ہم ان کو ابالش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس سے جو بلکہ آپ نے شیئر کیا کہ جو نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس ہے اس نے بتایا کہ جو 1987 سے لے کے 2008 تک تقریباً جو ہے وہ زیادہ مسلمان اس لا سے افیکٹ ہوئے ہیں، کچھ 750-800 قریب، پھر 550 احمدیز، پھر اسی طرح 230 کرسچنز اینڈ دین ہندوز ایز ویل. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح یہ جو بلاسفیمی لاز کا مس یوز کیا جاتا ہے؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے فرح صاحب؟ تھینک یو سو مچ. یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ پاکستان میں بلاسفیمی جو لاز ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کو 75 سال ہو جائیں گے بنے ہوئے، اور یہ بھی ہے کہ کل ہی واقعہ ہوا ہے کہ چنوٹ کے اندر ایک احمدی کو قتل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جب بہت دنیا میں ہیڈ لائنس بنی تھیں، وہ ایک سری لنکن نیشنل تھا سیال کوٹ میں، جس کو پہلے مار دیا گیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی اور سارا کچھ ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں. جنرلی ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشن پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کا بالکل فوکس ہوتا ہے کہ بلاسفیمی لا کو ختم کر دیں. ٹیلی ویژن پہ گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو روشن خیال لوگ ہیں یا جو مذہبی انتہا پسند ہے، دونوں اسی پہ ہی ڈبیٹ کرتے ہیں کہ کیا بلاسفیمی کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ ہوتی ہے. اور جو روشن خیال لوگ ہیں، جو نیوز پیپرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ آرگیو کرتی ہیں کہ یہ چونکہ فنڈامنٹل ریلیجیس فریڈمز کے خلاف ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. جو میرا ایسے تھا اس میں یہ آرگیو کرتا ہوں کہ بلاسفیمی لا کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلاسفیمی لا بنا کیسے ہے. بلاسفیمی لا بننے کے لیے مختلف آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کالونیل ایرا میں برطانیہ نے انٹروڈیوس کروایا اپنے راج کے دوران لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، یا دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ ریلیجیسلی بڑا ڈائیورس تھا تو ریلیجیس ہارمنی کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ انٹروڈیوس کروایا. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو اسٹیٹ علماء الائنس بنا تھا 11ویں اور 12ویں صدی میں، جب علماء پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کو لیجیٹیمیسی اور پاور شیئرنگ کے لیے ان قوانین کے لیے بنیاد رکھی. تیسری جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون کو ایگریویٹ کیا گیا تو وہ تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں اپنے ایسے میں یہ آرگیو کرتا ہوں کہ یہ تینوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں، اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. یہ تینوں ایکسپلینیشن اس پورے معاملے کو ایکسپلین کرتی ہیں. اور اسی معاملے پہ یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ پھر بلاسفیمی لا کوئی 20-30-40 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے مسلم ورلڈ کے اندر. کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں، ایران کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر بھی بلاسفیمی لاز ہیں اور وہ بھی پنشیبل بائی ڈیتھ ہیں، ان کی بھی سزا موت ہے. ریسنٹلی میرا چونکہ ریسرچ انٹرسٹ انڈونیشیا میں ہی ایک ڈیفینڈنگ اسلام ریلیز چلتی رہی ہیں. 2016 میں جکارتا کا ایک جو گورنر تھا کرسچن، اس کو ایکیوز کیا گیا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے. تو بلاسفیمی لا کوئی صرف ایک پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، بلاسفیمی لا صرف ایک تھیولوجیکل مسئلہ نہیں ہے، بلاسفیمی لا کوئی ایک ہسٹوریکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تینوں کا کمپلیکس کمبینیشن ہے. اور اس کمپلیکس کمبینیشن کا جو حل ہے، میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا جو میں ایسے میں بھی لکھتا ہوں. اس کا حل بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ آج بلاسفیمی لا کو ختم کر دیں. دلچسپ طور پہ آج تک پاکستان کے اندر کسی ایک شخص کو بھی عدالتی طریقے کے ساتھ
اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دی گئی. اپر کورٹ نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ جو سزائیں لوور کورٹ دیتی بھی ہیں تو ان کو وہ ختم کر دیتی ہیں. لیکن یہ 1990 سے لے کر 2018 تک اور اب یہ جو آپ مزید آج کل ہو رہے ہیں تقریباً 80 کے لگ بھگ لوگوں کو مابز نے ہجوم نے قتل کر دیا ہے صرف ایلیگیشن کی بنیاد پر. جیسے وہ سری لنکن نیشنل تھا, اس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ اچھا اس نے بلاسفیمی کی تھی یا نہیں کی تھی, ایک ڈیبیٹیبل تھا. اب جیسے احمدی کے بارے میں کل والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے صرف یہی پوچھا گیا کہ آپ احمدی کمیونٹی سے ہو, آپ چھوڑو گے یا نہیں. یہ میڈیا میں نے پڑھا ہے جو آج سے, تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو میرا استدلال یہ تھا کہ قانون کے ختم ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے پاکستان میں آپ بلاسفیمی لا کیسے ختم رائٹ اوے نہیں کر سکتی, اور اگر آپ ختم کریں گے کیونکہ اس کا ایک تاریخی, سیاسی اور ثقافتی ایک پس منظر ہے, اس کے ختم کرنے سے وہ وائلنس بڑھے گی. وہ اسلام جو ایک ہارڈ کور اسلامسٹ ہیں ان کو جسٹیفیکیشن دے گی کہ اب تو چونکہ ریاست کے پاس اس کا حل نہیں ہے تو پھر ہم خود ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک میرا بیک گراؤنڈ تھا اور میرا پورا جو آرگومنٹ کا ایک حصہ تھا وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو فرح صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریسنٹ پاکستان کے اندر بلاسفیمی لاز کا مس یوز ہے اور لوگوں کا مارا جانا اکراس ریلیجنز جو ہے, جس میں زیادہ تر وہ مسلمان ہی مسلمانوں پہ الزام لگا دیتے ہیں, تو یہ بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں جب گورنر سلمان تسیر کا جب قتل ہوا اور اس میں وہ جو ممتاز قادری تھے وہ ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے, اس وجہ کی وجہ سے یہ زیادہ, جسے آپ نے یہ کہا کہ اس کو ختم نہیں کرنا مناسب ہوگا, شاید اس کو شاید سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر چیزیں وہ میں پوچھتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان جو لیٹسٹ مومنٹم ہے یہ 2011 آنورڈ چلتا ہے, اور پھر جس طرح ایک ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ٹی ایل پی بعد میں جنم لیتی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ماڈرن ڈے میں بلاسفیمی لاز کو جو پولیٹیکلی, سوشلی, جو ریلیجیسلی ایک نئی زندگی ملی ہے, اس کو ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک چیز ابھر کے آئی ہے. اور میں اس پہ میری رائے یہ ہے کہ اس کے ہمیشہ سے اس کا بیج تھا, اس کی ہمیشہ سے اس کے جیسے وہ وہاں ایک تیل تھا, اس کو صرف وہ اردو میں کہتے ہیں کہ تیلی لگانے کی ضرورت تھی. ایک آپ کے پاس ایک گراؤنڈ تھا, ایک آئیڈیولوجیکل انٹرپریٹیشن ایسی رہیں. تاریخ میں ہماری جو ایک اسلامک ہسٹری ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کی انٹرپریٹیشنز ہیں. میں تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے ظاہر بات نہیں کروں گا, وہ میری ڈومین نہیں ہے, بٹ نن دی لیس وہاں پر ایک آپ کو اسپیس ملتی ہے آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس پر کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. پھر جس طرح کا ہمارے ہاں ایک تو ریاست پھر اس میں کمپلیسٹ رہی, اس میں کمپلیسٹی رہی ہے ریاست کی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ ادارے بھی اور کچھ پولیٹیشینس بھی ان قوانین کو یا ان قوانین کے پیچھے جو ایک سینٹیمنٹ, پبلک سینٹیمنٹ, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ آج نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی سینٹیمنٹ کو ادارے بھی اور افراد بھی یہ اس کو اسٹریٹجیکلی یوز کرتے ہیں. اور 1980 میں بھی جب ہوا تھا وہ یہی معاملہ تھا کہ ہم نے خاص قسم کا ایک مذہبی سینٹیمنٹ پیدا کیا. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں 2002 میں واشنگٹن پوسٹ میں نے اپنے اس آرٹیکل میں بھی حوالہ دیا تھا, ایک کتاب, ایک رپورٹ چھپی تھی, اس کا تھا کہ وہ ٹائٹل تھا کہ میں نے نوٹ کیا, وہ ٹائٹل تھا فرام امریکہ دی اے بی سی آف جہاد. رونلڈ ریگن نے 1990 میں اور 90 میں جو 80 اور 90 میں جو ہو رہا تھا اس میں 70 سے شروع ہوئی بات, کتابیں جو پڑھائی گئی تھیں مدرسوں میں اور جو مجاہدین تیار کیے گئے تھے وہ کتابیں امریکہ میں لکھی گئی تھی اور اس کو پھر بھیجا گیا تھا پاکستان میں, اور پھر ہم جس سے میں پتہ ہے کہ ایک پورا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا. تو وہ ایک نیریٹو تو 1980 کے بعد ایک تھا, ایک آئیڈیولوجیکل تو اسپیس تھی, اس کو ٹریگر کیا جو میں سمجھتا ہوں مس مینج کیا اسٹیٹ نے, اسٹیٹ ہائی ہیڈڈنس دکھائی اور مس مینج کیا ممتاز قادری کے کیس کو. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جو اس کو کنوکشن کے بعد سزا دینی تھی اور جو معاملہ تھا اس کو ایک احسن طریقے کے ساتھ اسی سزا کو کیری آن کیا جا سکتا تھا, لیکن ریاست کو اکیموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, ایک ڈسکورس کی ایکسیپٹیبلٹی بنانی چاہیے تھی. اب آپ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی اس کو کر دیا, اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا,
आपने सिचुएशन को खराब कर दिया जिस सिचुएशन को आप ठीक करना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि आइडियोलॉजिकल स्पेस पहले थी, फिर वो मुमताज़ कादरी का एक केस हुआ, उसके बाद वो एक चीज़ ट्रिगर हुई और अब तो वो आप देखें कि पूरी जमात है उस एक पूरे नारे के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो सिर्फ़ नज़रियात पे नहीं है, उसको ताकतवर हल्के और अफ़राद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल भी करते हैं। जब दिल चाहता है, ज़रूरत होती है, उनको स्पेस दे देते हैं, जब दिल नहीं चाहता या ज़रूरत नहीं होती, तो फिर उनको रोक देते हैं। तो पाकिस्तान में कोई एक वजह नहीं है ब्लास्फेमी को समझने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो डायमेंशनल फोकस होगा ब्लास्फेमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, शायद वो मिसलीडिंग होगा। सो देयर आर मल्टीपल रीज़न। बिल्कुल ठीक है। वो ज़ाहिर बात है, आपकी बात सही है कि वो जब दिल करता है, इस सोच को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जब दिल करता है, इस सोच को बिठा दिया जाता है, तो इससे तो हमें वो एक जो है वो एक नुकसान तो होता है, रियासत के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान होता है। फराज साहब, आप क्या समझते हैं? आप वेस्ट में बैठे हुए हैं। इस हौज से पाकिस्तान और एंड देन पर्टिकुलरली आप जैसे रिसर्चर जो जिनका काम ही रिसर्च करना है, एंड पर्टिकुलरली मज़हबी जो इश्यूज़ हैं, नेशनलिज़्म है, रिलिजन है, इस पे आप ज़्यादा तहकीक करते हैं। जो एकेडमिक डिस्कोर्स पाकिस्तान के बारे में लिखा जाता है, आप क्या समझते हैं उसमें इस तरह के ब्लास्फेमी लॉज़ की वज़ह से पाकिस्तान की इमेज को कितना कुछ नुकसान पहुँचता है? वहाँ पे बैठ के लोग जब बात करते हैं कि देखिए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आसिया मसीह को फ्लाई इन करना पड़ता है, आपको कनाडा लेके जाना पड़ता है। जो इस तरह के लोग होते हैं उनको अगर वो क्रिश्चियन है तो उसको बाहर लेके जाना पड़ता है, अगर मुसलमान है तो वो बस यहीं रहेगा और वो यहीं पे चीज़ें देखेगा। तो वहाँ पे वेस्ट में जो एक पाकिस्तान का जो इमेज है, वो कितना कुछ डिस्टॉर्ट होता है और कितना उसकी इमेज प्रॉब्लम होती है जब इस तरह के ब्लास्फेमी इश्यूज़ पाकिस्तान में आते हैं, या कि ये कहा जाता है कि जी देखिए इंडोनेशिया में भी मसले हैं, सऊदी अरब में भी मसले हैं, बाकी जगहों में भी हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं। कैसे देखते हैं जो वेस्टर्न एकेडमिशियंस हैं? मेरा चूँकि जो सब्जेक्ट है, मैं जनरली मुस्लिम वर्ल्ड को ही पढ़ता हूँ, मेरी पूरी दुनिया है, बहुत डिफेंसिव होते हैं हम। मैं अपोलोजेटिक तो नहीं होता, मैं बिल्कुल भी नहीं होता, जो जो मामलात होते हैं उन पे जैसे एक फैक्ट, क्योंकि इंसान अगर फैक्ट्स को छुपाकर, जैसे हमारे यहाँ एक अनफॉर्च्यूनेटली एक ट्रेंड है, हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स हैं, वो भी कुछ एकेडमिक्स अमेरिका से भी पढ़ के और यूरोप से पढ़ के, वो बड़े पॉपुलिस्ट टाइप हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अमेरिका में बैठकर किसी एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकियों को कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें ये मामलात नहीं है, बल्कि उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है, तो ये एक बड़ा पॉपुलिस्ट व्यू है। पब्लिक इसको बड़ा पसंद करती है कि देखे ना, पाकिस्तान को एक बंदे ने जाकर डिफेंड किया है। और वो फिर इसका नुकसान ये होता है कि आप अपने मामले को समझ नहीं पाते। आप अमेरिका को किसने अच्छा कहा है, ये कौन कह रहा है? मैं ये आपके इंटरव्यू में, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं उर्दू में ये कह रहा हूँ, मैं आप पिछले इंटरव्यू में अंग्रेजी में भी कह चुका हूँ कि अमेरिका जो है कि उसको कौन अच्छा कहता है। अमेरिका के बहुत मसले हैं। अमेरिका में जो हमारी इधर क्लासेस होती हैं, अगर उसमें किसी एक मुल्क पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है, सबसे ज्यादा, तो वो अमेरिका है। खुल के अमेरिका की इंपीरियलिज्म पे, एक्सटेंशनिज्म पे बहुत सारे जोक्स बने हुए हैं अमेरिकन क्लासरूम, ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है और पर्टिकुलर जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, इससे यहाँ का जो इमेज है, जो आप कोशिश कर भी रहे होते हैं कि आप एक नए तरीके से प्रोजेक्ट करें अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, बुनियादी तौर पर कि हम वो नहीं है जिस तरह से जनरली समझा जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है। जाहिर है इंडियन लॉबी बहुत पावरफुल है, उनके वो पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास एक पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक इमेज क्रिएट करती है, उनके पास अंग्रेजी के टीवी चैनल्स हैं, उनके पास अंग्रेजी के अच्छे अखबारात हैं, फिर उनके पास बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं सोशल साइंसेस के अंदर, जो कि बहुत डिफेंसिव है आजकल मोदी के बाद, कि बड़ा मुश्किल हो गया एरिया को उधर बाहर डिफेंड करना। अदरवाइज उनका एक अपना एक नैरेटिव है, अपना एक इमेज है, वो इंडियन सिविलाइजेशन को वहां पर प्रोजेक्ट करते हैं। हमारा मसला ये है कि जब आप पाकिस्तानी सोसाइटी की वैल्यूज को, फैमिली सिस्टम को, उनकी चीजों को आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो पीछे से CNN और न्यूयॉर्क में खबर आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि बंदे को ना सिर्फ मारा गया है, पहले मारा गया है, फिर उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, और आखिर में उसकी लाश को आग लगा दी गई और हमने वीडियो बनाई है। और फिर हमने वीडियो बनाकर कहा है कि ये हमने किया है, बड़ी बहादुरी से कहा है। और उसके बाद हम बहुत नाराज भी हो जाते हैं कि हम वेस्ट हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हमारा इमेज खराब करता है। तो
इमेज डॉक्टर साहब मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, ये जो इमेज मेकिंग है ना, इमेज मेकिंग, ये चाहे आप जितनी फर्म्स बना लें, जो भी कर लें, ज्यादा लंबे अरसे के लिए फेक इमेज रह नहीं सकता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप पाकिस्तान पे 1000 अच्छी किताब लिखते हैं लेकिन चीजें नहीं छुपेंगी। अमेरिका कितने पैसे स्पेंड करता है अपनी सॉफ्ट पावर पे, फिर भी अब हर किसी को पता है कि अमेरिका कहाँ पर स्टैंड करता है। चाइना की भी ऐसे है। तो एक एक वेस्टर्न जो एकेडेमिया है, या मैं जाहिर है मैं एक जनरल बहुत जनरलाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक परसेप्शन बता रहा हूँ। लोग डरते हैं हमारे मुल्क आने से। हमारे मुल्क खास तौर पे जो मेरी फील्ड के लोग हैं, अगर मैं किसी को इनवाइट करूं तो वो आगे से कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, सेशन आना जरूरी है। फिर किसी को कोई पब्लिकेशन के लिए हो तो वो पूछते हैं कि फरहान ये पाकिस्तान में पब्लिश हो सकता है? आपके यहाँ आप अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में लिख सकते हैं, बाकी मुल्कों में भी। फिर हम बड़े अपोलोजेटिक होते हैं कि देखिए ना, अमेरिका को 200 साल से ज्यादा हो गया है, हमारे 75 साल हुए हैं, हमें अपने फंडामेंटल्स तो ठीक करने होंगे। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सही है आपकी एक असेसमेंट जो है यहाँ पे भी हमने इसको सुना है। अच्छा फ़राज साहब हमें ये बताइएगा कि जैसे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जब ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कहते हैं कि अबॉलिश करें ब्lasphemy लॉज़, तो आप क्या समझते हैं क्या ये सही तरीका है या फिर इसको रियासत जो है वो कर तो नहीं सकती, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अनपॉपुलर हो जाएँगी, इस तरह की चीज़ करते हुए। तो आप क्या समझते हैं ये जो ग्रेट पावर्स हैं, क्या इनके पास कोई लेजिटिमेसी रह गई है या इन्फ्लुएंस रह गया है कि ये जो अ, वो ब्लास्फेमी लॉज़ जिसकी वजह से जो है वो जो वॉयलेंस होता है, जिसकी वजह से सोसाइटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से मुआशरे में मामलात खराब होते हैं और माइनॉरिटीज़ भी इनसिक्योर होती हैं। क्या ग्रेट पावर जैसे अमेरिका जैसा मुल्क और इनका जो ये जो कमीशन है इसकी कोई जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस रह जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल या बाकी जो बड़े प्लेटफॉर्म है जब वो इतना ज़्यादा लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों तब्दीली नहीं आती फिर उस हवाले से? या कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान बस उसको एक रिकमेंडेशन लेता है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता? व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑन दिस? क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर लिखा जाता है। मुझे ये लगता है कि अ, ये जो कमीशन की भी आपने बात की है, और एनजीओ की भी बात की है, और आईएनजीओ की भी जो बात है, जहां तक सारी की सारी, अ, मुझे ये लगता है कि ये मिसप्लेस्ड फोकस है। अ, लेकिन ये पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी। जो मेरा व्यू है, जो मैंने एक पॉलिसी ऐसे भी किया है कि ब्लास्फेमी लॉज जो हैं वो खत्म नहीं हो सकते इतने इंस्टेंटली, बल्कि उनको खत्म करने के लिए इस पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटिक्स है, एक पूरे का पूरे कॉन्टेक्स्ट है। तो लेकिन मसला अब ये आता है यहाँ पर कि पॉपुलर व्यू वेस्ट के अंदर भी यही है कि पाकिस्तान को कहें कि कानून खत्म करे, इंस्टेंटली खत्म करे। और इस व्यू से फिर फंडिंग मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, आप जल्दी पैसे ले सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में एनजीओ काम कर रही हो या पाकिस्तान से बाहर कर रही हो, आपको पैसे मिलते हैं, आप फैसिलिटेट होते हैं। पाकिस्तान में भी यही चीज होती है। जो ये ऐसा क्यों नहीं होता, मैं इसलिए समझता हूँ कि ये कोई सिर्फ ये वजह नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट हैं तो वो अनपॉपुलर हो जाएंगी। हमारे यहाँ पब्लिक डिस्कोर्स भी इस तरह से नहीं है। जनरली तौर पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नजरियाती तौर पे भी लोग इस तरह से तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डॉक्टर साहब एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार की है। हुँ, हुँ। हमने जनरेशन तैयार की है इन्हीं लाइंस के ऊपर। और हमने जब ये जनरेशन हम तैयार कर रहे थे तो ये बड़ी ज्यादती की जाती है हमारे यहाँ, जब फोकस किया जाता है कि जिया साहब ने ये कानून बनाया। जिया साहब ने कानून बिल्कुल बनाया, लेकिन इस कानून को सप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक कल्चरल एजुकेशनल पूरे का पूरा सेटअप चेंज किया, और उसकी कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी बनाई, इंटरनलाइज किया लोगों के अंदर। फिर ये जाकर कानून को लोगों ने अडॉप्ट किया। हमारी हिस्ट्री में भी ऐसी है कि इस तरह से इंटरनलाइजेशन हुई पहले वैल्यूज की, लॉ की। अब जब इसको सॉल्व करना है तो आपको सेम एनर्जी चाहिए, सेम रिसोर्सेज चाहिए। आपको कानून को, मैं अंग्रेजी में कहता रहता हूँ कि जनरली लॉ इज ओवर एस्टिमेटेड इन पाकिस्तान।
लीगल प्रोफेशन में जो लोग रहते हैं या जो बाकी भी लोग हमारे पॉलिटिक्स में भी हैं, लॉ को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। कानून बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है, कानून बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन उस कानून की क्या वैल्यू और हुकत है अगर उसकी कोई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। कानून वो कारआमद होता है जिसको मुआशरे एक्सेप्ट करे, जिसकी पाबंदी की जाए, जो ये तय हो कि ये हमारे किसी सोशल गोल को अचीव करने के लिए एक मीन है, एक टूल है। हमारे यहाँ जब तक ये फोकस रहेगा कि इसमें यूएस में और पाकिस्तान में भी और एनजीओ का और यूएस कमीशन का जो आपने बात दी थी, ये कानून खत्म कर दे और नीचे एवोल्यूशनरी लेवल पे, बेस लेवल पर कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी सोच भी सकती है कि वो अभी आइंदा 40-50 साल में ये कह दें कि चलो अब इस कानून के बारे में हम सोचते हैं। खत्म करना बहुत दूर की बात है, कोई ये भी कह के दिखाए कि हम इसको जो है इसको इसके बारे में सोचते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल करूँगा मैं फराज साहब आपसे, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए स्टेट को जब इतने पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे ये रेडिकलाइज़ेशन है, इस कानून की एक्सेप्टेबिलिटी भी है, लोग इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, सज़ाएँ भी नहीं हो पा रहीं, मिसयूज़ भी हो रहा है और बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हो रहा है, तो कैसे लोगों को बचाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों पे ऊपर इस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे तो मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे समझता हूँ लफ्ज़ माइनॉरिटी होनी नहीं चाहिए, ये भी ज्यादती है किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को माइनॉरिटी अपने मुल्क में बना देना। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कैसे हम चीजें बेहतर कर सकते हैं? इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होने के बावजूद सजाएं भी उस तरह नहीं होती, केसेस भी बन जाते हैं, लोग इसको मिसयूज भी कर रहे हैं, तो कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे पूरे डिटेल ऐसे का पर्पस यही था कि मैं कुछ प्रपोज करूं कि क्या हो सकता है। पहली चीज, मेरा बड़ा अनपॉपुलर सी ओपिनियन है और बिल्कुल पॉपुलिस्ट व्यू नहीं है, जिसको जो कि आजकल दिखता भी बहुत कम है। इमीडिएट सोल्यूशन कोई भी नहीं है, कोई भी इमीडिएट तरीका नहीं है कि आप ये कर लें। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि लेट्स नॉट फोकस ऑन ब्लास्फेमी लॉ। छोड़ दें इससे बात करना, नहीं है आपका मुआशरा इस पे तैयार बात करने के लिए, आपकी ज्यादा वायलेंस होगी। लेट्स टॉक about an inclusive and moderate interpretation of Islam. Let's talk about a version of Islam that is compatible with every modern value. And let's take those values not just from the Western world, from the Enlightenment. Let's go back to the Muslim history. हमारी अपनी जो मुसलमानों की तारीख है, उसमें जो हमारे फिलोसोफर थे, स्कॉलर्स थे, मैं बिल्कुल भी किसी को रोमांटिसाइज करके नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल वही फॉलो करना चाहिए। I'm just saying कि आपके यहाँ इन्हीं लिबरल वैल्यूज के और उनके सीड्स हैं, उसकी चीजें हैं जिनको आप इवॉल्व कर सकते हैं, मजीद काम करके आगे लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुकदान है कि हमारे यहाँ एक रोबस्ट पावरफुल सिविल सोसाइटी नहीं है। जो हमारी मौजूदा सिविल सोसाइटी है, अनफॉर्चुनेटली उसमें उसकी कल्चरल सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ जो लिबरल्स हैं उनको एंटी स्टेट या एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान समझा जाता है। एक डिसकनेक्शन हो गया है। फिर जब आप आस और दम में हो जाए तो फिर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, आप पब्लिक ओपिनियन को शेप नहीं कर पाते। एक तो हमें एक ऐसी सिविल सोसाइटी बनाने की जरूरत है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा अफसोस भी होता है, सोशल मीडिया आने के बाद तो बंदा छुप ही नहीं सकता कि हमारे जितने भी कुछ एंकर्स थे, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बेनिफिट ले रहे होते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने ऐसा आके सबको एक्सपोज किया है कि जब आप एक बार कह रहे होते हैं कि ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है, तो लोग कहते हैं कि 1 साल पहले आपने इसके खिलाफ बात की थी, वो ट्वीट दिखा देते हैं आपको। ये इसने कोई क्रेडिबिलिटी छोड़ी नहीं है, जो कि थोड़ी बहुत थी भी सही किसी सीनियर बनने की, या पता चल गया कि सारे के सारे कोई ना किसी का कुछ है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, कुछ है जिनकी अभी भी प्रिंसिपल स्टैंड है, कुछ पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं, कुछ जनरल्स, कुछ जजेस भी हैं जिनकी बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन होती है हमारे यहाँ। तो मेरा प्रपोजल ये है कि आपको एक रोबस्ट किस्म की सिविल सोसाइटी पे काम करना चाहिए, रियासत को करना चाहिए। तीसरा, एक इंडिपेंडेंट
सोचने वाले लोगों की जनरेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी से पैदा होगी। यूनिवर्सिटीज़ को खुला एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रिसेंटली एक जजमेंट थी, मैंने उस पे एक आर्टिकल भी लिखा था ग्लोबल ब्लिस स्पेस के लिए। जस्टिस शाह ने उसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटीज़ आर द बैटल ग्राउंड्स फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो अगर आप यूनिवर्सिटी को, कैंपसेस को पाबंदियां लगाएंगे, क्रिएटिविटी को रोकेंगे, तो फिर उससे आइडियाज मुआशरे में नहीं जाएंगे, फिर स्टैग्नेशन होगी। और आखिरी चीज, रियासत का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का होना चाहिए। रियासत को इम्पोज नहीं करनी चाहिए चीजें आकर, क्योंकि मैं पहली बात को इसको रिपीट करूंगा कि जब रियासत चीजों को इम्पोज करती है, इम्पोजिशन हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है। जब तक इंटरनलाइजेशन नहीं होगी, जब तक ये बिलीफ नहीं होगा कि इस्लाम में कोई चीज ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है कि मैंने किसी को कत्ल करना है, ये बुनियादी शर्त है हमारे बिलीफ, ये होनी, जब तक ये नहीं होगी, आप हजारा कानून बना दें, आपके यहाँ 1000 लोग शामिल होते हैं मॉब में, और वो कह रहे होते हैं कि हमने मारा है उसको, वो वीडियो पे कह रहे थे हमने मारा है उसको, उसने ब्लास्फेमी की थी। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट टू टू डील विद इट। बिल्कुल कह रहे हैं, ये सही आपने कहा कि इसकी ग्रास रूट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल जो है वो सेंसिटिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमैटिकली वो जो है वो मसला हल हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहें कि जी हमने चॉप डाउन करना है लॉ को, और उससे ज़्यादा एक सेंटिमेंट्स उठेंगे, और ज़्यादा शायद जो है वो जो आपने मुमताज़ कादरी वाला वाक़या उसमें बताया कि उसको, वो तो एक प्रॉपर एक तहरीक और पार्टी का रूप जो है वो धार गया। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फराह साहब, हमें एनलाइटन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि 75 साल बाद भी ब्लास्फेमी लॉज़ जो हैं वो किस तरह मिसयूज़ हो रहे हैं, और हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ, जो हमें हमें तलाश करना है। थैंक यू वेरी मच फराह साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी।